सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम यूनिट 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स के ऊपर बात करने वाली है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये इसके सम पार्ट्स कॉमन है। जबकि हम ऊस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कितना पार्ट कॉमन है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम एचडीएलसी मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे। चलिए, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, the ultimate objective of software engineering is to produce good quality, maintainable software within reasonable time frame and at affordable cost। देखिए, ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताई थी। दिस इज अचीवेबल ओनली इफ वी हैव matured processes to produce it. For a matured processes, it should be possible to determine in advance how much time and effort will be required to produce the final product. This can only be done using data from past experience, which requires that we must measure the software process. Software development organization follow some process when developing a software product. In immature organization, the process is usually not written down. In mature organization, the process is in written down and is actively managed. A key component of any software development process is the life cycle model on which the process is based. The particular life cycle model can significantly affect overall life cycle cost association with a software product. Life cycle of the software starts from concept exploration and ends at the retirement of the software. In the IEEE standard glossary of software engineering terminology, the software life cycle is the period of time that starts when a software product is conceived and ends when the product is no longer available for use. The software lifecycle typically includes a requirement phase, design phase, implementation phase, test phase, installation and checkout phase, operation and maintenance phase and sometime retirement phase। देखिए, जो ये चीज़ है ना, आपको ध्यान रखना, ये सारे जितने मॉडल्स पढ़ने वाले हैं एसडीएलसी के, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट फेज, डिज़ाइन फेज, इंप्लीमेंटेशन फेज, टेस्ट फेज एंड इंस्टॉलेशन, ये वाले फेज ये सब में कॉमन होंगे, बस कुछ कुछ में लाइफ साइकिल बदलेंगी। ठीक है। A software lifecycle model is a particular abstraction that represents a software lifecycle. A software lifecycle model is often called a software development life cycle, जो कि SDLC में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसका एक्रोनिम है। A variety of life cycle models have been proposed and are based on tasks involved in developing and maintaining software. Few well-known life cycle models are discussed in the chapter। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे build and fix model। Sometimes a product is constructed without a specification or any attempt at design. Instead, the developer simply builds a product that is reworked as many times as necessary to satisfy the client. This is called ad hoc approach and well known and not well defined। ओके, तो बिल्ड एंड फिक्स में सिंपल है, बिल्ड बनाएंगे फिक्स करेंगे, बिल्ड बनाएंगे फिक्स बनाएंगे, जो कि एक सिंपल एक तरीके से मॉडल है। इसमें कुछ हम ज़्यादा कुछ वो नहीं करते, जिसको एडॉक अप्रोच कहते हैं, ये नॉट वेल डिफाइंड है। बेसिकली इट इज़ अ सिंपल टू फेज मॉडल। द फर्स्ट फेज इज टू राइट कोड एंड द नेक्स्ट फेज टू फिक्स it, and fixing in this context may be error कनेक्ट करेक्शन और एडिशन ऑफ फर्दर फंक्शनैलिटी। ठीक है, आप सिंपल देख सकते हो इसके हिसाब से डायग्राम से, आप सिंपल देख सकते हो, सिर्फ कोड लिखना फिक्स करना, कोड करना फिक्स करना, जो कि इतना बड़ा रिलायबल नहीं है। ठीक है, ऑल्दो दिस अप्रोच में वर्क ऑन स्मॉल प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें 100 टू 300 लाइन्स ऑफ कोड होंगे, उसमें हम ये अप्रोच यूज कर सकते हैं। दिस मॉडल इज टोटली अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर सॉफ्टवेयर ऑफ एनी रीजनेबल साइज। Code soon become unfixable and unenhanceable. There is no room for design or any aspect of development process to be carried out in a structured or detailed way. The cost of the development using the approach is actually very high as compared to the cost of a properly specified and carefully designed product. In addition, maintenance of the product can be extremely difficult without a specification or design document। ठीक है, सिंपल ये है। फिर आता है द वाटरफॉल मॉडल। द वाटरफॉल मॉडल कहता है कि ये थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ बिल्ड एंड फिक्स के बाद। ठीक है, और ये है, ठीक है, द मोस्ट फेमिलियर मॉडल इज द वाटरफॉल मॉडल विच इज गिवन इन फिगर पॉइंट टू। अब हम देखते हैं फिगर में क्या है। द मॉडल हैज 5 फेजेस। इसके अंदर 5 फेजेस आती है, जिसमें आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन डिजाइन, implementation and unit testing, integration and system testing, and operation and maintenance। द फेज ऑलवेज ओकन इन दिस ऑर्डर एंड डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, आपको नाम से समझ में आएगा वाटरफॉल, यानी कि एक मतलब इसका जो बिहेवियर है वो एक डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, द डेवलपर मस्ट complete each phase before the next phase begins. This model is named waterfall model because its diagrammatic representation resemble a cascade of waterfall। ओके, देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो एक वाटरफॉल की तरह, इसलिए ये एक डायरेक्शन में मूव होता है, तो ये है वाटरफॉल मॉडल। फर्स्ट आता है इसमें रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज। इसके अंदर क्या है, द गोल ऑफ दिस फेज इज टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड टू डॉक्यूमेंट देम प्रॉपरली। This activity is usually executed together with the customer as the goal is to document all function, performance, and interfacing requirement for the software. The requirement describe the what of a system, not the how. कि सिस्टम में क्या कैसे क्या काम करेगा, ना कि ये कैसे काम करेगा, सिर्फ क्या सिस्टम क्या काम करता है इसमें आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में। दिस फेज प्रोड्यूस a large document written in a natural language, contains a description of what the system will do without describing how it will it done. द रिजल्टेंट डॉक्यूमेंट इज नोन एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो इसके बाद जो एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा उसको बोलते हैं एसआरएस, जो कि है इस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि ये फर्स्ट वाटरफॉल मॉडल की सबसे फर्स्ट जो हमारी फेज है वो आती है। द एसआरएस डॉक्यूमेंट में एक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेवलपर एंड कस्टमर। इफ डेवलपर फेल्स टू implement full set of requirements, it may amount to failure to implement the contracted system। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जो कि एसआरएस। ठीक है, आप देख सकते हो ये है हमारा डायग्राम, जिसमें सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, फिर आता है सेकंड पे हम डिजाइन करते हैं, थर्ड पे हम इंप्लीमेंट और यूनिट टेस्टिंग करते हैं, फोर्थ पे हम इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, और इसमें आता है हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये है हमारा वाटरफॉल मॉडल की फेजेस। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज जो है डिजाइन फेज। द एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो चुका है हमारे पास इन द प्रीवियस फेज में। ठीक है, विच कंटेन द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। द गोल ऑफ दिस phase is to transform the requirement specification into a structure that is suitable for implementation in some programming language. Here, overall software architecture is defined and the high level and detailed design work is performed. This work is documented and well and known as software design description। देखिए इसके अंदर जो निकल के आएगा वो आएगा SDD document। The इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द एचडीटी शुड बी सफिशिएंट टू बिगिन द कोडिंग फेज। देखिए इसके बाद जो हमारी फेज आने वाली है वो कोडिंग आ रही है, जिसमें आ रहा है हमारा इंप्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। तो ये कोडिंग वाली फेज से पहले का जो हमारा जो डॉक्यूमेंट मिला वो है एसडीडी। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट में हम पे एसआरएस मिला, फिर एसडीडी बना, अब आता है इंप्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग जिसके अंदर हम कोड लिखने जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज डिजाइन इज implemented। इफ द एचडीडी इज complete, the implementation or coding phase proceed smoothly because all the information needed by the software developer is contained in the SDD. During testing, the major activities are centered around the examination and modification of the code. Initially, small modules are tested in isolation from the rest of the software product. There are problems associated with testing a module in isolation. How do we run a module without anything to call it? To be called by it is possibly to output intermediate values obtained during execution. Such problems are solved in this phase and modules are tested after writing some overhead code. ठीक है, फिर आती है हमारी फोर्थ फेज जो है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग फेज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ओके, इफेक्टिव टेस्टिंग विल कंट्रीब्यूट टू द डिलीवरी ऑफ higher quality software products, more satisfied users, lower maintenance cost, and more accurate and reliable result. It is a very expensive activity and consumes one third of one half of the cost of a typical development project. Okay, as we know, the purpose of unit testing is to determine that each independent module is correctly implemented. This gives little chance to determine that the interface between the modules is also correct. And for the reason integration testing is performed, सिस्टम टेस्टिंग इन्वॉल्व द टेस्टिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम। देखिए टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसमें टेस्टिंग होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करके टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, फिर आता है वेयर एज सॉफ्टवेयर इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, दिस इज एसेंशियल टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द डेवलपर बिफोर सॉफ्टवेयर इज डिलीवर टू द कस्टमर और रिलीज इन द मार्केट। ठीक है, फिर आप बताते हैं हमारी फिफ्थ फेज जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज। देखिए मेंटेनेंस फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी जो भी हम मॉडल पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज अ टास्क दैट एवरी डेवलपमेंट ग्रुप हैज टू फेस when the software is delivered to the customer site, installed and is operational. Therefore, release software inaugurates the operation and maintenance phase of the life cycle. The time spent and effort required to keep the software operational. ठीक है, फिर आता है हमारा आफ्टर रिलीज इज वेरी सिग्निफिकेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टास्क इट इज routinely the poorly managed headache that nobody wants to face. Software maintenance is a very broad activity that includes error correction, enhancement of capabilities, deletion of obsolete capabilities, and optimization. The purpose of this phase is to preserve the value of the software over time. This phase may span
for 5 to 50 years, whereas development may be 1 to 3 years. ओके, ठीक है। तो इस फेज के अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें 5 to 50 years हमारे इस फेज में जाने वाले हैं, डेवलपमेंट में 1 to 3 years। ठीक है, ये सिंपल आपको एक बता दिया गया है एक एग्जांपल से। द मॉडल इज टू इजी टू अंडरस्टैंड एंड री द नोशन ऑफ डिफाइन बिफोर डिजाइन। ठीक है, पहले डिफाइन करो फिर डिजाइन करो, एंड डिजाइन बिफोर कोड। ठीक है, पहले डिजाइन करो फिर कोड करो। ठीक है, तो यानी कि डिफाइन जो हो गया हमारे एसआरएस में, फिर डिजाइन हो गया एसडीडी में, और कोड हमारा हो गया इंप्लीमेंटेशन। दिस मॉडल एक्सपेक्ट कंप्लीट एंड एक्यूरेट requirement early in the process, which is unrealistic. Working software is not available until relatively late in the process, thus delaying the discovery of serious error. It also does not incorporate any kind of risk असेसमेंट। ठीक है, बेसिकली क्या है, इसमें एक प्रोसेस पूरा खत्म होने के बाद, एक फेज पूरी कंप्लीट होने के बाद दूसरी फेज पे हम जंप करते हैं। तो इसके अंदर ये वाली चीज है जो कि प्रॉब्लम भी बन सकती है। देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑल रिक्वायरमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। देखिए, सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो चीज़ें हमारी बाद बाद में डिफाइन होती है, तो हम पहले से ही हम ये नहीं कह सकते कि जो एसआरएस बनाया है उसमें सब कुछ डिफाइन है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रह जाएगी। फिर आता है दिस मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेटिंग एनी चेंज। इसमें चेंज हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार जब पूरी फेज खत्म हो जाती है जब हम दूसरे पे जाते हैं। ठीक है, अब वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नॉट सीन अंटिल लेट इन द प्रोजेक्ट लाइफ। ठीक है, वर्किंग प्रोजेक्ट हमारा लास्ट में ही दिखाई देगा जब सारे ये डिफाइन हो जाएंगे, एसआरएस बन जाएगा, एचडीडी बन जाएगा, इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी तब। इट डज नॉट स्केल अप वेरी लार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट पे हम इसको यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए ठीक है। रियल प्रोजेक्ट आर रियली सीक्वेंशियल। ठीक है, due to this weakness, the application of waterfall model should be limited to situations where the requirement and the implementation are well understood. For example, if an organization has experience in developing accounting system, then building a new accounting system based on existing design could be easily managed with the waterfall model. ठीक है, फिर हमारा आता है सेकंड, इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल्स। ठीक है, इसके अंदर आते हैं इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल्स आर effective in the situation where requirements are defined precisely and there is no confusion about the functionality of the final product. Okay, although functionality can be delivered in phase as per desired priorities, after every cycle, a usable product is given to the customer. For example, in the university automation software, library automation would maybe module may be delivered in the first phase and examination automation module in the second phase, and so on. Every new cycle will have an additional functionality. Increment process model are popular particular when we have to quick deliver a limited functionality system. फिर आता है हमारा इंटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल। इसमें कहता है दिस मॉडल has the same phases as well the waterfall model but with fewer restrictions. Generally, the phases occur in the same order as in the waterfall model, but these model may be conducted in several cycles. A usable product is released at the end of the each cycle, with each release providing additional functionality. During the first requirement analysis phase, customer and developer specify as many requirements as possible and prepare a SRS document. Developer and customer then prioritize these requirements. Developer implement the specified requirement in one or more cycles of design, implementation, and test based on the defined priorities. This model is given in 2.3 आप ठीक है, आप देख सकते हो ये है हमारा फिगर 2.3 में देख रही है, ये है इटरेटिव एनहेंस मॉडल। इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट हुआ, डिजाइन हुआ, इंप्लीमेंटेशन हुआ, फिर इंटीग्रेशन हुआ, ऑपरेशनल। ये तो हमारा था वाटरफॉल में। अब क्या है, यहाँ डिजाइन के बाद दोबारा से हम सेकंड मॉडल पे काम कर सकते हैं। ये फर्स्ट रिलीज है, फिर सेकंड रिलीज में फिर डिजाइन, इंप्लीमेंट, इंटीग्रेट और ऑपरेशन करेंगे, फिर थर्ड में। तो क्या है यहाँ पे हमारा क्या है, यह है इटरेटिव एनहेंस मॉडल। ठीक है, हम इटरेटिवली इसको इन्हेंस कर सकते हैं। आफ्टर एक बार हमारी रिक्वायरमेंट मिल गई, फिर हम बार बार इसके फर्स्ट रिलीज सेकंड रिलीज डिजाइन कर करके हम बना सकते हैं। द एम ऑफ द वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज द डिलीवरी ऑफ अ कंप्लीट ऑपरेशनल एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। इन कॉन्ट्रास्ट दिस मॉडल डज डिलीवर एन ऑपरेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट एट ईच रिलीज, but one that satisfies only a subset of the customer requirement. The complete product is divided into releases and the developer delivers the product releases by the release. A typical product will usually have many releases as shown in figure 2.3. At each release, customer has an operational quality product that does a portion of what is required. Okay, the customer is able to do some useful work after first release. With this model, first release may be available within a few weeks or months, whereas the customer generally waits months or years to receive a product using the waterfall and prototyping मॉडल। ठीक है, तो आप देख सकते हो
मैंने आपको समझाया है कि इसके अंदर क्या है, इटरेटिव इनहेंस मॉडल के अंदर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप वहां से कंटिन्यू हो जाएगा डिजाइन से, तो एक रिलीज, दो रिलीज, थ्री रिलीज, तो ऐसे इटरेटिव वे में चलता रहेगा, लेकिन फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या है हम बाद में चेंज करते रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा RAD यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दिस मॉडल इज एन इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल एंड वाज डेवलप्ड बाय IBM। ये IBM ने बनाया था इन द 1980s एंड डिस्क्राइब्ड इन द बुक ऑफ जेम्स मार्टिन एंटाइटल्ड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। Here, user involvement is essential from requirement phase to deliver of the product. The continuous user participation ensures that involvement of users' expectation and perspective in requirement elicitations, analysis, and design of the system. The process is started with building a rapid prototype and is given to user for evaluation. The user feedback is obtained and prototype is refined. The process continues till the requirements are finalized. We may use any grouping technique like fast QFD brainstorming session। ये इंटरव्यू में जो हम रखते थे, जैसे फास्ट में हम रखते थे, ये सब सारे सेशन हम रेड में यूज करते हैं फॉर डिटेल्स आफ्टर चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 में आपको मैं बताऊंगा फास्ट कैसे QFD क्या होता है। ठीक है, फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन SRS एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द एसोसिएशन ऑफ यूजर्स। ठीक है, इसके अंदर RAD मॉडल के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, फिर यूजर डिस्क्रिप्शन है, फिर कंस्ट्रक्शन है, फिर कट ओवर। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज। इसमें क्या, रिक्वायरमेंट आर कैप्चर्ड यूजिंग एनी ग्रुप एलिसिटेशन टेक्निक, जो कि हम टेक्निक पढ़ने वाले फास्ट होगी, उसमें इंटरव्यूज होंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होंगे, वो हम यूनिट 3 में देखेंगे। सम टेक्निक्स आर डिस्कस्ड इन चैप्टर 3। ओनली इशूज इज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें जो है यूजर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज में। फिर आता है सेकंड, यूजर डिस्क्रिप्शन। जॉइंट टीम ऑफ डेवलपर्स एंड यूजर आर कॉन्स्टिट्यूटेड to prepare, understand and review the requirement. The team may use automated tools to capture information from the other user। ठीक है, ये आता है यूजर डिस्क्रिप्शन में। फिर आता है थर्ड हमारा कंस्ट्रक्शन फेज। इसमें आता है these phase combine the detailed design, coding and testing phase of waterfall model। Here we release the product to customer। It is expected to use code generator, skin generator and other types of productive tools। ठीक है, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन फेज। फिर आता है लास्ट हमारा कट ओवर फेज। दिस फेज incorporates acceptance testing by the user, installation of the system and user training। इसमें आता है कट ओवर फेज में। इन दिस मॉडल क्विक इनिशियल व्यूज अबाउट द प्रोडक्ट आर पॉसिबल ड्यू टू डिलीवरी ऑफ रैपिड प्रोटोटाइप। ठीक है, तो इसमें क्या हम रैपिडली ये प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, जैसे इसका नाम है रैपिड। ठीक है, द डेवलपमेंट टाइम ऑफ द प्रोडक्ट मे बी रिड्यूस ड्यू टू यूज ऑफ पावरफुल डेवलपमेंट टूल्स। It may use case tools and frameworks to increase productivity. Involvement of user may increase the acceptability of the product. If user cannot be involved throughout the life cycle, this may not be an appropriate model। ठीक है, इसमें यूजर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वो चेंजेस करने के बाद हम इस मॉडल में कर सकते हैं। जब ये RAD है, रैपिड चेंज कर सकते हैं। डेवलपमेंट टाइम में नॉट बी रिड्यूस वेरी सिग्निफिकेंटली इफ रीजनेबल कंपोनेंट्स आर नॉट अवेलेबल। हाई स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड डेवलपर आर एक्सपेक्टेड एंड सच developers may not be available very easily. It may not be effective if system cannot properly modelize। फिर आता है हमारा इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल रिजेंबल्स इटरेटिव enhanced model। The same phase as defined for the waterfall model occur here in cyclic fashion. The model differs from iterative enhancement model in the sense that this does not require a usable product at the end of each cycle. In evolutionary development, requirements are implemented by category rather than by priority। For example, in a simple database application, one cycle might implement the graphical user interface, ठीक है, another file manipulation, another queries, and another updates। Okay, so all four cycle must complete before there is working product available। GUI allow the user to interact with the system. File manipulation allow data to be saved and retrieved. Queries allow user to get data out of the system, and updates allow user to put data to the system। With any one of those parts missing, the system would be unusable। In contrast, an iterative enhanced model would start by developing a very simplistic but usable database। On the completion of each cycle, the system would become more sophisticated
It would, however, provide all the critical functionality by the end of the first cycle. Evolutionary development and iterative enhancement are somewhat interchangeable. Evolutionary development should be used when it is not necessary to provide a minimal version of the system quickly. These models are useful for projects using new technology that is not well understood. This is also used for complex projects where all functionality must be delivered at one time, but the requirements are unstable or not well understood by the system. देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल इनका डिफेंड है मतलब जो ये सारे मॉडल्स हैं इनकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे ही हम इनको यूज़ करेंगे। जैसे कि इसको आप देख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ही इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को हम यूज़ करेंगे। ऊपर से इसमें शुरू में प्रॉब्लम हम पे रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं होगी, ठीक है, और नॉट वेल अंडरस्टूड बाय एट द बिगनिंग। तो इसमें हम वाटरफॉल मॉडल जब यूज़ करेंगे तब हम पे रिक्वायरमेंट होंगी। तो ये ऐसी है, हम डिपेंड करता है हम कौन से मॉडल्स को यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल नाम से समझ में आ रहा है, पहले हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। A disadvantage of waterfall model is discussed in the last section in the working software. It is not available until late in the process, thus delaying the discovery of serious error. An alternative to this is to first develop a working prototype of the software instead of developing the actual software. The working prototype is developed as per current available requirement. Basically, it has limited functional capabilities, low reliability, and untested performance, usually low. The developer use this prototype to refine the requirement and prepare the final specification document. Because the working prototype has been evaluated by the customer, it is reasonable to expect that the resulting specification document will be correct. When the prototype is created, it is reviewed by the customer. Typically, the review gives feedback to the developers that helps to improve uncertainties in the requirement of the software and start an iteration of refinement in order to further clarify requirement as shown in figure 2.5. तो आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ली गई, फिर क्विक डिज़ाइन हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, कस्टमर इवैल्यूएशन। अब कस्टमर ने कुछ चेंजेस करना चाहता तो वापस वो आया रिफाइनमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट एज पर सजेशन, और वापस से क्विक डिज़ाइन। तो ये सब हमारा चलता रहेगा। इसके बाद इस फेज पे हमारा एसआरएस बन गया, फिर हमारा आता है डिज़ाइन, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये है हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल। द प्रोटोटाइप मे बी यूजेबल प्रोग्राम बट इट इज नॉट सुटेबल एज द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। The reason may be poor performance, maintainability, or overall quality. The code for the prototype is thrown away. However, the experience gathered from developing the prototype helps in developing the actual system. Therefore, the development of prototype type might involve extra cost, but overall cost might turn out to be lower than that of equivalent system developed using the waterfall model. ठीक है, तो प्रोटोटाइप बनाना ही एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क है। तो कभी कभार हम प्रोटोटाइप को यूज भी नहीं करते, बस बेसिकली क्या है, यूजर को एक क्लियर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कि कैसा दिखने वाला है। ठीक है, डेवलपर शुड डेवलप प्रोटोटाइप एज अर्ली एज पॉसिबल टू स्पेंड अप द सॉफ्टवेयर development process. After all, the sole use of this to determine the customer's real needs. Once this has been determined, the prototype is discarded. For this reason, the internal structure of the prototype is not very important. After the finalization of software requirement and specification यानी कि SRS document, the prototype is discarded and the actual system is then developed using the waterfall approach. Thus, it is used as an input to waterfall model and produce maintainable and good quality software. This model requires extensive participation and involvement of the customer, which is not always possible. ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक डिसएडवांटेज ये है इसकी कि हमें इसमें यूजर चाहिए हमेशा, क्योंकि वो जो प्रोटोटाइपिंग है वो हमारे को देख के बताएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक एक इसकी डिसएडवांटेज है कि हमारे कस्टमर ऑलवेज नॉट पॉसिबल कि वो हमारे साथ ही होंगे। तो इस वजह से यहाँ इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है। फिर आता है हमारा स्पाइरल मॉडल। द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर process model is that they do not deal sufficiently with the uncertainties which is inherent to software project. Important software projects have failed because project risks were neglected and nobody was prepared then something unforeseen happened. Barry Boehm recognized this and tried to incorporate the project risk factor into a life cycle model. The result in the spiral model which was presented in 1986 and shown in figure 2.6. ठीक है, आप देख सकते हो, मैं एक बार स्पाइरल मॉडल को दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये है हमारा स्पाइरल मॉडल। इसके अंदर चार फेज है देखिए टोटल। यहाँ से हम स्टार्ट करें साइकिल, फर्स्ट प्रोटोटाइप से यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर मतलब हर साइकिल पे कोस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये है हमारा दिखने में क्या बोलते हैं हमारा स्पाइरल मॉडल। देखिए अब इसके फेज को देख लेते हैं कि क्या क्या फेज आती है। ठीक है, द रेडियल डायमेंशन ऑफ द मॉडल रिप्रेजेंट द कॉम्पिलेटिव कॉस्ट। मैं कहूँ हर एक साइकिल पे कोस्ट बढ़ेगी। एच पाथ around the spiral is indicative of increased cost. The angular dimension represent the progress made in completion each cycle. Each loop of the spiral from x-axis clockwise through 360-degree represent one phase. One phase is split roughly into four sector of major activities. First आता है planning, risk analysis, development, assessment. Planning में क्या determines of objective, alternative and constraints. रिस्क एनालिसिस में आता है एनालाइज ऑल्टरनेटिव्स एंड अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द रिस्क इन इन्वॉल्व। फिर आता है जो कि सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो रिस्क है। ठीक है, रिस्क किसी में हम देख नहीं रहते, यहाँ पे हम सेकंड फेज में रिस्क को देख रहे हैं, क्योंकि रिस्क एनालाइज करके रिस्क की एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम इसमें दूर करेंगे, जो कि है स्पाइरल में। थर्ड आता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट। फिर आता है असेसमेंट, कस्टमर इवोल्यूशन। तो लास्ट में हमारा कस्टमर इवोल्यूशन पे जाएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज प्लानिंग इज परफॉर्म, रिस्क आर एनालाइज, प्रोटोटाइप्स आर बिल्ट एंड कस्टमर इवेलुएट द प्रोटोटाइप। ड्यूरिंग द सेकंड फेज अ मोर रिफाइंड प्रोटोटाइप इज बिल्ट, requirement are documented and validated, and customer are involved in assessing the new prototype. By the time third phase begins, risks are known and somewhat more traditional development approach is taken. The focus is the identification of problem and the classification of these into different level of risk. The aim being to eliminate high risk problem before they threaten the software operation or cost. An important feature of the spiral model is that each phase is completed with a review by the people concerned with the project, designer and programmer. This review consists of a review of all the product developed up to the point and include the plan for the next cycle. These plans may include a partition of the product in a smaller portion for development for components that are implemented by individual groups or person. If the plan for the development fails, then the spiral is terminated. Otherwise, it terminates with the initiation of new or modified software. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो आता है हमारा रिस्क फैक्टर आता है सेकंड फेज पे, फर्स्ट पे आता है हमारा प्लानिंग फेज, फिर हमारा लास्ट में असेसमेंट होगा और थर्ड पे आएगा डेवलपमेंट। तो ऐसे हमारा फेज चलता है, तो और ईच एंड एवरी साइकिल पे कोस्ट बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बाकी हमारा जो बाकी सबके ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क, जो कि कोस्ट बढ़ती रहेगी हर फेज पे। द एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज द वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन to accommodate the good feature of the other life cycle model. It becomes equivalent to another life cycle model in appropriate situation. It also incorporates software quality objective into software development. The risk analysis and validation steps eliminate errors in the early phases of development. The spiral model has some difficulties that need to be resolved before it can be a universally applied life cycle model. These difficulties include lack of explicit process guidance in determining objective, constraint, alternative relying on risk and assessment expertise, and providing more flexibility than required for many applications. फिर आता है हमारा द यूनिफाइड प्रोसेस। ठीक है, TUP बोलते हैं इसका एक्रोनिम। द यूनिफाइड प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड बाय आई जैकबसन, जी बूच एंड जे रैम्बॉग इन दिस बुक द यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. It is a software engineering process with the goals of producing good quality maintainable software within a specified time and budget. The unified process support iterative development where project is developed through a series of short fixed length mini project called iteration, the outcome of each iteration is a tested, integrated, and executable system. Each iteration has its own requirement analysis, design, implementation, and testing activities. Hence, the system continues to enlarge and refine with every iteration and thus grows incrementally over time. Thus, this approach is also known as iterative and incremental development. The unified process is now maintained and enhanced by Rational Software Corporation and thus also referred as RUP, Rational Unified Process. As we all know, sequential approach is not suitable due to
changing requirement and uncertainties in software development, iterative approach is definitely better than sequential approach and became the basis of unified process. The process also defines who is doing what, how, and when. The role of everyone in the development process is defined clearly and precisely. फिर आती है हमारी phases of unified process. ठीक है, there are four phases in the unified process and the life cycle is shown. ठीक है, each phase has a specific outcome which can be reviewed if reviewed to improve the quality of the process. इसमें आता है इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन. ठीक है, ये फोर फेज है हमारी आरयूपी की, यानी कि यूनिफाइड प्रोसेस की. इंसेप्शन में क्या था, दिस फेज इज यूज टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द वर्क. This is similar to requirement analysis and specification phase of waterfall model. We define the requirement using the requirement elicitation techniques. The customer and developer interaction help us to capture and define the requirement. Although requirements are always changing, but the changes can be accommodated due to iterative nature of the process. The outcome of the phase is clear defining of the objective of the project. फिर सेकंड आता है हमारा इलेबोरेशन. इलेबोरेशन में कहता है हाउ डू वी प्लान एंड डिजाइन द प्रोडक्ट. What resources are required? What type of architecture may be suitable? These questions are answered in this phase. We specify the feature and prepare the baseline of the architecture. This is similar to design phase, waterfall model. The outcome is the planning and architecture document of the project. ठीक है, फिर इंसेप्शन आता है, इलेबरेशन, थर्ड आता है कंस्ट्रक्शन. इसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव आर ट्रांसलेटेड इन डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंट. दीज डॉक्यूमेंट आर द इनपुट्स टू कंस्ट्रक्शन फेज एंड आउटपुट इज द प्रोडक्ट. We build and test the product in this phase. The outcome of this phase is the deliverable product to the customer and sometimes may be treated as beta release. ठीक है, पहले बीटा रिलीज होगा, उसके बाद हम दोबारा से जो है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट आउटपुट में निकलेगा. तो ये कंस्ट्रक्शन फेज. फिर आता है हमारा फोर्थ ट्रांजिशन फेज. ट्रांजिशन द प्रोडक्ट ऑफ द कस्टमर इन्वॉल्व्स मैनी एक्टिविटी लाइक डिलीवरिंग, ट्रेनिंग, सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोडक्ट. The ultimate objective is the customer satisfaction. The phase activities may continue till the customers are satisfied. The outcome is the product release, which also conclude the life cycle of unified process. These four phases, inception, elaboration, construction, and transition, constitute a development cycle and produce a software generation. In the first iteration, initial development cycle, first version of the software is produced. The software will be used by user. The feedback of the users in terms of additional functionality, failure report, etc. may motivate use to work for second version. The same processes through inception, elaboration, construction, and transition phase will repeat to evolve the next generation of the software product. These cycles are known as evolution cycle. With several evolution cycle, new generation of the product are produced. This process will continue up to the retirement of the software product. तो आप देख सकते हो इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, वर्जन 1 हमारा निकल गया. फिर अगर हमें कुछ चेंजेस करने, फिर से इनिशियल डेवलपमेंट साइकिल बनेगी, फिर रिवॉल्यूशन साइकिल, ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में जबकि कंटिन्यूसली टिल द प्रोडक्ट इज रिटायर्ड. तो ये है इनिशियल डेवलपमेंट इवोल्यूशन साइकिल्स. फिर आता है द फेजेस आर नॉट इक्वल लेंथ. The length may vary depending on the type, specification, and environment of the project. In each phase, we progress iterative, and each phase may consist of one or more iteration as shown in figure 2.9. तो आप देख सकते हो कितनी सारी इटरेशन बनेगी. फर्स्ट इटरेशन है ये, फिर सेकंड इलेबरेशन के बाद इटरेशन, इटरेशन 4, इटरेशन 5, इटरेशन 6, ऐसे एवरी इटरेशन पे हमारा जो प्रोडक्ट है लास्ट में बन के चला आ जाएगा, फाइनल रिलीज हो गया. ठीक है, तो यह iteration with a phase. Each iteration follows a pattern which is similar to waterfall model. Hence the workflow contains, देखिए waterfall model है सबका बेस, उसके बाद हमने उसमें चेंजेस कर करके हमने नए जो मॉडल्स बनाए. Hence the workflow contains the activities of requirement elicitation and analysis, design, implementation and testing. ठीक है, यह जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है, ये एक नया चैप्टर है यूनिट 3 जो होगा, वो हम इसमें सब कुछ पढ़ेंगे. एलिसिटेशन में हमारा है कि टेक्निक कैसे हम एसआरएस बनाने से पहले हम कैसे हम डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हम कैसे कैसे यूजर से और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डेटा को लेके हम डेटा बनाएंगे. तो ये है, इसके अंदर आता है एलिसिटेशन, ये यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे. हाउएवर फ्रॉम वन इटरेशन टू द नेक्स्ट एंड फ्रॉम वन फेज टू द नेक्स्ट, द एम्फेसिस ऑन वेरियस एक्टिविटीज विल चेंज. Figure 2.10 shows the relative emphasis on the various types of activities over time. ठीक है, आप देख सकते हो जो ये है हमारी फिगर, इसमें जो हमारे ग्राफ बन रहा है ये ओवर टाइम बन रहा है. ठीक है, ओवर द टाइम हमारा कौन सा फेस ऊपर जा रहा है. देखिए पहले यार जब हमारा है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस, तो देखिए
एलिबरेशन सबसे ऊपर है। ऐसे धीरे धीरे करके हमारे हर फेज के अंदर आप देख सकते हो कौन सी पीक पे जा रहा है, कौन सा वो। तो इस डायग्राम से हम पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। ठीक है, फिर आता है हमारा दीज एक्टिविटीज आर नॉट सेपरेटेड इन टाइम, rather they are executed concurrently throughout the lifetime of the project. As we have seen in figure 2.10, not much code is written early in the project life cycle, but the amount is not zero. Late in the project, most of the requirements are known, but some new ones are still identified. Thus, as the project matures, the emphasis on certain activities increases or decreases, but activities are allowed to execute at any time throughout the lifetime of the project. ठीक है, द इंसेप्शन फेज इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू द रिक्वायरमेंट elicitation and analysis. The scope of the work is defined and some planning work is also carried out. The elaboration phase has the focus on requirement with some emphasis on design and implementation. During the construction phase, focus is mostly on design and implementation. We produce first operational product after this phase. The focus of transition phase is on training, installation, and customer interaction. The feedback of customers help us to improve and enhance the product. We produce and deliver the final product. ओके। तो ये आप देख सकते हो कि हमने फर्स्ट फेज पे हमारा रिक्वायरमेंट फेज पे ये पीक इसलिए हाई है क्योंकि हम सबसे पहले इन पे ही काम कर रहे होते हैं, इंसेप्शन इलेबोरेशन पे। फिर जैसे डिजाइन फेस आएगा तो कंस्ट्रक्शन हाइक पे चला जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम कोड लिखते हैं। फिर इंप्लीमेंटेशन में हमारे ये पीक पे, तो ये सब आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। फिर आता है हमारा यूनिफाइड प्रोसेस वर्क प्रोडक्ट्स। ऑल फोर फेसेस produce different work product as per outcome of the phases. The inception phase has the following objective. First, gathering and analyzing the requirement, planning and preparing a business case, and evaluating alternatives for risk management, scheduling, resources etc. फिर आता है estimating the overall cost and schedule for the project. फिर आता है study the feasibility and calculating profitability of the project. Many documents are prepared are shown in figure 2.11. तो आप देख सकते हो इंसेप्शन प्रोटोटाइप्स है, प्रोजेक्ट प्लान, इनिशियल रिस्क असेसमेंट, इनिशियल बिजनेस केस, इनिशियल प्रोजेक्ट ग्लोसरी, इनिशियल यूज केस मॉडल, विजन डॉक्यूमेंट और बिजनेस डो मॉडल। ठीक है, तो ये आता है हमारा इंसेप्शन में। द विजन डॉक्यूमेंट, अब देखते हैं कि को समझते हैं। द विजन डॉक्यूमेंट एम्फेसिस इज ऑन रिक्वायरमेंट एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट. इनिशियल यूज केस मॉडल गिव्स यूज केस डायग्राम। ठीक है, इसमें यूज केस डायग्राम आते हैं। यूज केस डायग्राम आपको मैं यूनिट 5 या उसमें देखने को मिलेगा, जिसमें एक्टर्स और हमारे जो यूज केस डायग्राम बनते हैं अलोंग विद एक्टर्स। देखिए यहाँ पे एक्टर्स का भी नाम आ गया। ठीक है, तो एलोक एक्टर्स को मैं बता देता हूँ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाकी इसके हम यूज केस डायग्राम हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में। इट में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ यूज केसेस दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एट द अर्ली स्टेज। ठीक है, इनिशियल बिजनेस केस अब आता है। इनिशियल बिजनेस केस में क्या मे इंक्लूड रिवेन्यू मॉडल, मार्केट कंडीशन, बिजनेस डिफिकल्टीज एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट एक्सेट्रा. Project plan document may include phases and iteration for the development of the project. Prototypes are very useful for the understanding of the project. A business model may be required to provide idea about time to market, marketing strategies, cash flows, and threats. The elaboration phase has the focus on the analysis of problem domain, establishes a sound architectural foundation, develops project plan, and eliminates the risk elements. Some of the objective and activities are establishing architectural foundation, design of use case model, elaborating the process infrastructure and development environment, selecting component if possible for the project, demonstrating the architectural support the vision at reasonable cost with the specified time. ओके, द आउटकम्स आर गिवन। ठीक है, हमारा जो इलेबोरेशन फेज है इसमें आता है डेवलपमेंट प्लान, रिवाइज रिस्क डॉक्यूमेंट एंड एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर प्रोटोटाइप, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट, सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स विद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूज केस मॉडल और है प्रीलिमिनरी यूजर मैनुअल। ठीक है, ये आता है हमारा इलेबोरेशन में। देखिए, यूज केस मॉडल at least 80% complete is prepared. All use cases are identified along with associated actors. Supplementary requirement document with non-functional requirement and software architecture description document are also prepared. A prototype is also designed for the customer to give an idea about the final product. A development plan may iteration workflows etc. is also prepared. A preliminary user manual, although optional, may be also being prepared in this phase and will refine in the subsequent phases. The construction phase produce the product for the customer. The objective and activities are implementing the project,
minimizing development cost, managing and optimizing resources, testing the product, assessing the product release against acceptance criteria. The outcome of this phase is a product ready to use for the customer and is shown in figure 2.13. देखिए कंस्ट्रक्शन में आता है हमारा टेस्ट आउटलाइन, ऑपरेशनल मैनुअल्स, टेस्ट शूट, a description of the current release, यूजर मैनुअल, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल्स। ठीक है, ये है आउटकम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फेज। द आउटकम्स आर वेरियस ऑपरेशनल एंड डॉक्यूमेंटेशनल मैनुअल along with software product. The test suite documents are also preserved carefully because they are required during the maintenance of the software product. The transition phase lays focus on successful delivery and installation of the software product. These phases include the following: commencement of beta testing, analysis of users use, training of users, tuning activities including bug fixing and enhancement for performance and usability, assessing for the customer satisfaction. The outcome are given in figure 2.14. ओके, तो ट्रांजिशन में आते हैं तीन: प्रोडक्ट रिलीज, बीटा टेस्ट रिपोर्ट्स और यूजर फीडबैक। द यूनिफाइड प्रोसेस हैज मैनी एडवांटेज ड्यू टू iterative and incremental nature. Changes can be accommodated, risk can be minimized, reusability can be ensured, and learning along with project evolution is possible. Hence, the product that results from unified processes will be of good quality. The system has been tested several times, improving the quality of testing. The requirements have been refined and are more closely related to the customer's actual expectation. अब आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ ए लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या है, द बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला है रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट टीम, यूजर्स, प्रोजेक्ट टाइप एंड एसोसिएशन लिस्ट। देखिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि पूछ सकता है कोई कि कौन सा मॉडल हम कब यूज करेंगे, तो हम इसी टेबल से बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन appropriate model. There are number of situation and problem during requirement capturing and analysis. The details are given below. देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, आर रिक्वायरमेंट इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड डिफाइंड। तो हाँ, वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास पहले से डिफाइन होती है, प्रोटोटाइप मॉडल में नहीं होती, क्योंकि प्रोटोटाइप में मैं बताऊँ ना कस्टमर का मेन रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे नो है, बाकी इटरेटिव में भी नहीं होती, इवोल्यूशनरी में नहीं होती, स्पाइरल में भी नो है, सिर्फ रेड। रेड और वाटरफॉल ही एक ऐसा है जिसके अंदर हमारा रिक्वायरमेंट पहले से नोन होती है। ठीक है, फिर आता है डू वी चेंज रिक्वायरमेंट क्वाइट ऑफन। तो वाटरफॉल में एक बार जब रिक्वायरमेंट बन जाती है तभी हम उसके बाद एक स्टेज पे चलते हैं, तो वाटरफॉल तो बिल्कुल नो है। ठीक है, फिर हमारा है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में रिक्वायरमेंट को ऑफन चेंज कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर इवेल्युएशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। बाकी इटरेटिव में भी नहीं कर सकते, इवोल्यूशनरी भी नहीं कर सकते, स्पाइरल में मैंने आपको बताया एक चक्री मारती है जो कि कॉस्ट बढ़ जाती है, तो एक के बाद दूसरी कॉस्ट पे हम वापस से इसमें रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। और बचा रेड, रेड में भी नहीं है पॉसिबल। ठीक है, फिर आता है कैन वी डिफाइन रिक्वायरमेंट अर्ली इन द साइकिल। तो जब पहले ही हम अर्ली रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, हाँ वाटरफॉल में कर सकते हैं, इटरेटिव में कर सकते हैं, और हमारे रेड में कर सकते हैं, है ना। और जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट उसमें भी हम कर पा रहे थे, क्योंकि देखिए आप डिफाइंड रिक्वायरमेंट पहले से कर रहे थे, तो यहाँ पे भी इवोल्यूशनरी में भी। ठीक है, जहाँ नहीं कर सकते प्रोटोटाइपिंग में हम रिक्वायरमेंट को अर्ली नहीं कर सकते क्योंकि वो कस्टमर के फीडबैक पर डिपेंड करता है। स्पाइरल में भी मैंने बताया आपको कि पहले से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो हम साथ बाय साथ हम हर एक स्पाइरल के बाद उसको डिफाइन करते जाते हैं, तो इसलिए इसमें नो है। ठीक है, फिर आता है रिक्वायरमेंट आर इंडिकेटिंग अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू बी बिल्ट, है ना। तो इसके अंदर क्या है, वाटरफॉल में नहीं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम वाटरफॉल से नहीं बना सकते, और जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हम प्रोटोटाइपिंग में यूज करते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, इटरेटिव इनहेंसमेंट में भी यूज करते हो, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में भी यूज करते हो, और स्पाइरल में भी। ठीक है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो तो हम इन चार फेज को यूज करेंगे। ठीक है, जब हमारी रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक हो। फिर आती है हमारी टेबल स्टेटस है ऑफ डेवलपमेंट टीम। द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, नॉलेज एंड इंटेलिजेंट टीम वर्क is very important for the success of the project. If we know above mentioned parameter and characteristic of the team, then we may choose an appropriate life cycle model for the following. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमारे पास लेस एक्सपीरियंस ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट। तो देखिए वाटरफॉल में एक जब हमारी एच डी डी या एस आर एस बन जाता तभी हम दूसरे फेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल चांस नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारा जो है प्रोटोटाइप पे एक बार को रिस्क रखते हैं, कोई कस्टमर बार बार इवेल्युएट करेगा तो वहाँ पे हम बार बार हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है, इटरेटिव में नहीं कर सकते, इवोल्यूशन में नहीं, स्पाइरल में हम वापस से, है ना, दूसरी साइकिल पे हम जाते हैं, तो तब हम ये ले सकते हैं लेस एक्सपीरियंस और सिमिलर प्रोजेक्ट। ठीक है, लेस डोमेन नॉलेज, अगर डोमेन नॉलेज कम है तो हम वाटरफॉल को यूज कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि डोमेन नॉलेज न्यू टू द टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हमारा सारा जो है इम्प्लीमेंटेशन एक फेज में होता है, तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इसकी डोमेन नॉलेज में कमी है। ठीक है, इटरेटिव इनहेंस मॉडल में भी हम लेस डोमेन नॉलेज को ले सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है इवोल्यूशनरी में भी कर सकते हैं और स्पाइरल में भी। ठीक है, प्रोटोटाइप और रेड में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ एक बार हो गया तो हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते बेसिकली। लेस एक्सपीरियंस ऑन टूल्स टू बी यूज, अगर किसी ने टूल्स बहुत कम यूज करे हैं तो हम वाटरफॉल में उसको ले सकते हैं। ठीक है, और हमारा स्पाइरल में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नहीं ले सकते क्योंकि उसको टूल्स का आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर ट्रेनिंग चाहिए तो हम सिर्फ इटरेटिव इनहेंस में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं और इवोल्यूशनरी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं और रेड में, बाकी के लिए नो है। ठीक है, फिर आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर इंक्रीज द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, hence user participation if available plays a very significant role in the selection of an appropriate life cycle. Some issues are discussed in table। ठीक है, यूजर इन्वॉल्वमेंट इन ऑल फेजेस। देखिए प्रोटोटाइप में हमारा यूजर होता है क्योंकि हर फेज पे हमारा यूजर ही उसको इन्फॉर्मेशन देता है, और रेड के अंदर भी। ठीक है, लिमिटेड यूजर पार्टिसिपेशन, तो ये वाटरफॉल में लिमिटेड यूजर पार्टिसिपेशन है, क्योंकि एक बार यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी उससे हमने एसआरएस बना दिया है, अब यूजर का बहुत ही लिमिटेड है, अब काम नहीं कर सकते। ऐसी इटरेटिव में और इवोल्यूशनरी और स्पाइरल में भी। ठीक है, तो इसमें हमारा लिमिटेड यूजर पार्टिसिपेशन है। फिर यूजर हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सिमिलर प्रोजेक्ट, अगर उसका यूजर का किसी में पार्टिसिपेशन नहीं है तो उसमें क्या है, प्रोटोटाइप में हम यूज कर सकते हैं उसको, इटरेटिव में यूज कर सकते हैं और इवोल्यूशनरी और स्पाइरल में, बाकी वाटरफॉल और रेड के लिए नो। यूजर कैन एक्सपर्ट ऑफ प्रॉब्लम डोमेन, तो उसके लिए प्रोटोटाइप में उसको डोमेन अपने, जहाँ पे जो यूजर है हमारा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं स्टेक होल्डर में बताऊंगा यूजर की डेफिनेशन असली। तो यूजर क्या है, यूजर, ठीक है, यूजर वो है जो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, उसको पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज हो तो प्रोटोटाइप में बहुत हेल्प करेगा, इटरेटिव में भी हेल्प करेगा और इवोल्यूशनरी में और रेड में। ठीक है, तो इसके लिए जैसे बाकी वाटरफॉल और स्पाइरल में हमारा यूजर का एक्सपर्ट होने की नहीं जरूरत है। ठीक है, तो है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। वेरी फ्यू मॉडल इनकॉर्पोरेट रिस्क एसेसमेंट। Project type is also important for the selection of a model. Some school issues are discussed। ठीक है, let's say project is the enhancement of the existing system। पहले से existing system लाई करता था, तो हमने एक नया proposed सिस्टम बना रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें हमें इटरेटिव में हेल्प करेगा और इवोल्यूशनरी में हेल्प करेगा और रेड में हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी ये कहीं हेल्प नहीं करने वाला। फंडिंग इज स्टेबल फॉर द प्रोजेक्ट। देखिए वाटरफॉल में फंडिंग पर्टिकुलर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, प्रोटोटाइप में फिक्स हो जाएगी, बाकी रेड में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ वो बाकी में पॉसिबल नहीं है। फंडिंग इज स्टेबल, क्योंकि वहाँ कॉस्ट बढ़ सकती है, स्पाइरल में आपको पता है हर साइकिल पे कॉस्ट बढ़ेगी, तो वहाँ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाई रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, देखिए हाई रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट हमें इटरेटिव में जरूरत पड़ेगी, इवोल्यूशनरी में और स्पाइरल में, बाकी के लिए नो है। टाइट प्रोजेक्ट शेड्यूल, तो उसमें प्रोटोटाइप में, इटरेटिव इन्हांसमेंट में और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में और स्पाइरल और रेड में, इन सब में हमें जरूरत पड़ेगी टाइट प्रोजेक्ट शेड्यूल, वाटरफॉल को छोड़ के। यूज ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट, तो इसमें क्या है, प्रोटोटाइप में और स्पाइरल में और रेड में, तो यहाँ पे हम रीयूजेबल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। आर रिसोर्सेज टाइम मनी स्कार्स, तो यानी कि जो हमारा रिसोर्सेज है वो, उसके लिए हमारा प्रोटोटाइप और स्पाइरल, इसमें हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, बाकी इनमें नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये चीज़ें हमारे क्वेश्चन में काम आएगी। तो एन अप्रोप्रिएट मॉडल में बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द ऑप्शन इन टेबल। इन टेबल से ही हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि क्या कौन से मॉडल कब यूज़ करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन प्रेजेंटेड फॉर ईच कैटेगरी बाय साइक्लिंग yes or no in that each table, rank in importance of each category or question within the category in terms of the project for which we want to select a model, the total number of circle responses for each column in the table decide an appropriate model. We may also use the category ranking to resolve the conflict between models if the total in either cases is close or the same। तो बेसिकली इन टेबल से ही हम इसको बता सकते हैं कि कौन सा मॉडल हमें कब यूज़ करना है। तो देखिए ये थे हमारे यूनिट 2। आपको मैं इसका नोट्स और प्रोवाइड करूंगा, आप, मैं अगली वीडियो में आपका एक नोट्स भी बनाऊंगा इसके, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, और उसके मैं नोट्स को अपलोड करके आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए आपका ये होती है वीडियो यहाँ पे खत्म। आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको इसी तरह आके बुक के बारे में बताऊंगा, बाकी मैं इसके नोट्स अलग से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस आपका सुनने के लिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।